हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आप सभी का इधर स्वागत है फॉर वन ऑफ द वेरी अवेटेड you say event or yes awaited paper for the November 2020 attempt। इस बहुत ही controversial attempt का ये mock test paper आज issue हुआ है and yes for that here Navkar Institute will provide you the detailed solution for each and every subject for all the levels of CA. So friends, hereby I am Chartered Accountant Nikhil Gupta, friend of all of you and yes, a faculty for the subject of Advanced Accounting, paper number 5 in Intermediate. Friends, इसी पेपर में today I am starting and going to deal with this mock test paper series in the October 2020. कमिंग एग्जाम नवंबर 2020 के लिए इस मॉक टेस्ट पेपर में हम शुरुआत करते हैं डिटेल सॉल्यूशन का। बट बिफोर दैट आई वांट टू गिव यू सर्टेन वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कि हम यहाँ पर जो भी छोटे से या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, फॉर दैट वी विल जस्ट डिस्कस इट। दी ऑलरेडी आंसर्स आर ऑल्सो बीन अपलोडेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, सो काइंडली चेक ऑन दैट एज वेल। एंड यस, फॉर द बिगर चैप्टर्स फॉर द सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग, that is the consolidation, the bigger chapter. The second one is the amalgamation and the third one that is newly added in this attempt, the partnership accounts. Friends, आप सभी को इन तीनों चैप्टर्स के काफी कैलकुलेशंस, काफी अच्छा प्रैक्टिस की जरूरत हमेशा होती है। So over here also I have prepared the answer sheet already and will put up the values together and accordingly हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ओवर हियर फर्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1A. दिस एंटायर क्वेश्चन इज अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन 1A relates to the AS 18. The question states about Mr. Arnav. He is the relative of the key managerial personnel and he is receiving the remuneration 3 lakh for his service to the company. So वो रिलेटिव है KMP का, and then for the period of April 19 to June 19, later on from July he left the job. Whether Mr. Arnav should be classified, identified as related party or not. So friends, यहां पर specifically a party is said to be a relative, which stated by Accounting Standard 18, which considered a party is said to be relative if during any time in the year, मैं वापिस कह रहा हूं, during any time in the year, मतलब भले ही यहां मिस्टर अर्नव had left the job on 1st July, but उनको एटलीस्ट हमें आइडेंटिफाई तो जरूर करना है रिलेटिव। एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर अ पार्टी हैज द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और द कंट्रोल ओवर द अदर पार्टी। ऐसे ही वर्ड्स इस आंसर में दिए हुए हैं, सो लेट अस जस्ट कंसीडर द आंसर ओवर हियर। यस फ्रेंड्स, so I already have indicated, highlighted the key points. So this is the one party has ability to control other party, exercise the influence over the other party, influence over the decisions, operating decisions. So यहाँ पर Mr. Arnav is a relative. Even if he is not in the job, but yes, being the relative of KMP, key managerial personnel is deemed to be the related party and his relative considered to have significant influence. I hope you understood. Friends, उसी के साथ wanna go for the second part. Question 1A bracket 2 provides for one of the limited company sold the goods to associate company. Guys, यहां पर always एक ट्रिक और एक अच्छा सा टिप आप सभी को मैं देना चाहता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स सभी पेपर में लास्ट लाइन पहले रीड करिए, आपका माइंड एग्जैक्टली कैप्चर करेगा उसी चैप्टर को। इट विल नॉट विवर एवरीवेयर। सो यहां पर हमें स्पेसिफिकली पूछा है हाउएवर द गुड्स वर सप्लाइड कंटिन्यूअसली, डज द requirement of disclosure of related party transaction is for the entire financial year. Okay, now it is stated in the Accounting Standard 18 for the disclosure norms for the related party transactions. Disclosure norms of related party transactions states that the related party transaction shall be disclosed when the relationship exist. It means आप अगर नेगेटिव बोलेंगे means if the relationship
doesn't exist, then there is no disclosure requirements of related party. Over here, only during the first quarter there was the associate company relation. So यहाँ पर there is no requirement to disclose entire years all the transactions. I hope you got it. Friends, with that, ये theoretical question खत्म होता है. Now, another question relates to the accounting standard number 9. Question 1A bracket B. I am talking about 1B. In this question, we have to find how the revenue will be recognized for the year ending 31st March. And कुछ एक और portion कहा गया है, what will be the treatment if the publication is delayed until the 2nd of the April 2020. चलिए शुरू करते हैं दोस्तों. यहां पर एक स्पेसिफिक पॉइंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में पूछा गया है, when the services are rendered until the performance obligation is fulfilled, a revenue cannot be recognized. Performance obligation क्या है? Here there is New Era publication. They are publishing some magazine 5th of every month. Then they are selling the advertisement space in the magazine. उनकी एडवर्टीजमेंट मैगजीन के लिए, अब मैगजीन जो है उसमें एडवर्टीजमेंट करनी है, उनके लिए लोग उनको क्या करते हैं तो कि 80% सेल वैल्यू एडवांस में दे देते हैं एंड 30 days ऑफ द रिलीज ऑफ द पब्लिकेशन, बाकी का पैसा. एक मिनट, मतलब मैगजीन आएगा, उसमें जो लोगों को एडवर्टीजमेंट रखनी थी वो लोग 80 रुपीज अभी देते हैं, 20 रुपीज मैगजीन में एडवर्टीजमेंट आ जाने के बाद में देते हैं. बट प्रॉब्लम इज, अब देखो मार्च 2020 issue was made, sale of the space of the March 2020 was made in the February 2020. मैगजीन शेड्यूल डेट पे आया. रुक जाइए फ्रेंड्स, मैगजीन कब आया था, मतलब शेड्यूल डेट कब है? 15th of every month, मतलब 15 मार्च को मैगजीन आया. इट मींस क्या इसी ईयर में 31st मार्च से पहले मैगजीन आया? यस. सो ओवर हियर दिस रेवेन्यू, सॉरी फ्रेंड्स, this revenue shall be recognized in the year. So they receive this 240 and 60,000 on the 10th of the April for the March 2020 issue as well. Guys, whatever they received, see, this is for the March 2020 issue. So in that case 240 and 60,000 both will be recognized in the revenue, as the performance obligation was completed on the March 15th. मुझे ये 31st March के दिन I will have to see the condition whether the publication has been issued. I received the money. When the money 2,40,000 was received, be careful, when that money was received was considered that day as advance money. However, on the 15th March I will consider as revenue. But ये 60,000 को भी revenue treat करना है. अब क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इफ द पब्लिकेशन इज डिलेड. तो क्वेश्चन का आंसर ये रहा. हमने अगर ये सोचा था, ऑब्वियसली 15 मार्च को एक मैगजीन का इश्यू होने वाला था, पब्लिसाइज होने वाला था, अगर वो डिले हुआ, देखिए लिखा है इफ इट इज डिलेड रेवेन्यू विल ऑल्सो बी डिलेड अंटिल इट हैज बीन पब्लिश इन मैगजीन. हियर इट इज सिंपली प्रोवाइडेड एडवर्टीजमेंट विल बी कंसिडर्ड एज ऑन द डेट. Total 240 plus 60 is recognized as income in the March 20. Simple answer. मैं theoretical accounting standards के कुछ briefs, कुछ important points यहाँ highlight करके रखे हैं. Please just note it down. I am speaking towards you, so I hope you guys are also getting to understand how it is dealing with. दोस्तों, so friends, इसी के साथ we want to go for the next question that relates to the accounting standard number 7. Here in this question you need to prepare some profit and loss statement. देखिए, मैं पहले ये फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन को ही पहले पढ़ रहा हूं. It indicates I need to prepare profit and loss statement. There is accounting standard 7, revenue from the construction contracts. यहां पर ये कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, देखिए. पहले तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ 50 lakhs का, टोटल 1 करोड़ 50 lakhs was the contract price. Here are the expenses incurred. See, already these are expenses incurred. However, there is estimated of further expense of 33,50,000. Now, simply we need to calculate it this way. I can go for the cost, then I can compare it with the revenue. But before that, want to give you brief of the
Accounting Standard 7, para number 35 indicates when the cost estimated means cost incurred and further estimated cost is greater than, is more than the contract revenue. The foreseeable loss shall be recognized in the year when it is occurring, or rather you are looking towards the watch or the estimation of the loss. So here in the same case, let me just brief you answer. Here I already have prepared that way. Guys, I hope you will get it. 1 minute guys, 1 minute. Question 7. So friends, answer is ready over here. This brief I have prepared, the statement of P&L and the foreseeable loss. मैंने जैसे ही last time में बोला है वैसे heading दे दिया है. So I will put up the values together over here. So material which is used. So first of all, this whatever cost I am indicating 71 lakhs over here, and then the other cost, please getting added labor charges. See, all you consider is even the outstanding labor charges or the paid labor charges. All you will consider 36 and other cost labor charges of 2 lakh. 36 plus 2 lakh. These two. Please be careful. Paid is 36 and 2 lakh. I also will add it. 38 lakh it will be. 71 lakh material. Labor is 38. Then go for the higher charges 10 lakh. Please add 10 lakh. Consider friends 10 lakh, and other contract cost like it is 15 lakh over here. So friends, I hope you will get your totals. Please kindly consider the total. Answer say I will take a brief. See, this is 1 crore 34 lakhs. So I simply will add it. Guys, I am preparing with you just because आपका confidence बने. आप सभी प्लीज एक बार रफली तो रफली आंसर साथ में लिखते जाएंगे, so that you will be having your higher confidence in your exams and you will clear it with very good marks. So over here friends, estimated future cost और estimated है. देखिए क्वेश्चन में, see this is 33,50,000. So when I did that 33,50,000, 1 minute guys, okay, 3350, you add it. What is the total cost of construction? Then it will be 1 crore 67 lakh 50,000. 1 crore 675,50,000. I hope you get it. दोस्तों देखिए, current cost incurred is 1 crore 34 lakh. 1 crore 67 lakh 50,000 estimation के साथ future की total cost of construction है. So what is the completion of percentage like of the project? I can say 80% of the project has been completed. Now the revenue can be recognized 80% of the total 1 lakh 50. I hope you get it guys. So your total answer then shall be, प्लीज बी केयरफुल, 1 करोड़ 20. अगर 1 करोड़ 50 का 80% करते हैं, यू वेरी वेल विल गेट इट 1 करोड़ 20. बी केयरफुल, 1 करोड़ 20 is your current year revenue you shall recognize. And more importantly, can I say that total foreseeable loss is the total construction cost 1 crore 67 lakh 50 minus 1 crore 50. तो total estimated loss भी है. So in this year, current yearly, in the revenue, total current estimated expenses अभी तक का and the revenue until now 80%, total that much, and with together with that the foreseeable loss as per para 35, I need to provide and will debit it to the statement of P&L in the current year only. Reference to para 35 will be a more advantage to your presentation of answer. So please be with it. I hope you will get it. 35 lakhs will be your answer. Friends, with that, let me check it out how much you should consider. In the current year, total loss is provided 350. Loss is also to be provided. I hope you get it guys. 17 and 14 more loss is also there guys. 1 minute.
in the total loss 1750, my mistake guys, please be careful. Total loss 1750 के साथ साथ 14 लाख का लॉस करंट ईयर तक का है, लेकिन 350 मोर आई नीड टू बी प्रोवाइडेड. आई होप यू गेट इट. हमको तो टोटल 1750 का कॉस्ट इतना लॉस होने ही वाला है विद द करंट ईयर वॉट एवर इन एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट इट इज. फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट इट. नाउ let me just bring you to the next part of the question, the next question rather, question 1D. Here the question provides for one of the plant, Sudesh Limited acquired the plant 2 crore 40 lakh 5 years. Over here it is provided, find out amortization cost for each of the years of the patent. Friends, it is a patent, my mistake. In the patent that is renewable. Friends, this is being the intangible assets. The amortization of the intangible asset is in the specified ratio that is in useful life, or maybe in the ratio of future economic benefits derived out of such intangible assets. यहां पर बेसिक स्टोरी ये थी कि 2 साल तक, 5 में से 2 साल जो थे, in those 2 years it was equally considered for 48 lakh, because you can say 2 crore 40 divided by 5, 48 lakh was to be amortized. 2 years this happened, and from the 3rd year the company decided then the net cash flow from next 5 years, and in those 5 years in the ratio of the net cash flows, ye rahe friends, in these ratio they basically want to amortize. Problem is, it's just like you are changing the WDV method and SLM method. What you were doing, 2 साल तक WDV यूज किया, बाद में SLM पे जा रहे हो, रिवर्स भी सोच लो. तो यहां पर यही हुआ. यहां पर फ्रेंड्स the same thing which is provided in question 1D, asking that in the 2 years 48 lakh into 2, 96 lakhs total amortization हो चुका. 2 crore 40 lakh में से 96 when I am reducing, please guys note it down. So 1 crore 44 lakh balance remains. Now this balance in the coming 5 years in the amortization for expected cash flow, in that ratio they will amortize. See, this is the ratio. I can make it out: 36 46 44 40 34. I hope you got it. तो ये जो बैलेंस बचा, simply this will be amortized in the given amount. So these are the amounts. I hope you will get it. मैंने यहां पर लिखा है कि ये रेशियो कैसे डिराइव है. See, institute might have done some different way to present it, but over here I have presented it in this manner. So I hope you can do that. It is very simple. 36 divided by 200. देख रहे हो? 46 divided by 200. समझ रहे हो? I hope friends you are getting. With that note, this is what the amortization cost of different years. For the first 2 years, the amortization was 48 lakh each. I hope you got it. Friends, with that, we are now moving towards the question number 2A. A longer question, 2A in the partnership 532. Please go for the last line. Don't forget about that. So friends, यहां पर देखिए, हमें requirement पूछी है. Number of shares of each of the class to be issued by company to the partner. रुकिए, ये first line. Reading this requirement, I hope you clicked in your mind. आपको ये पता चल गया कि ये कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है. सो हियर वी हैव, से फॉर एग्जांपल, MNO कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म. MNO द फर्म विल बिकम MNO लिमिटेड. इज इट MNO और PQR? लेट अस सी. इट इज MNO. सो ये फर्म कन्वर्ट होने जा रहा है. क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? लेकिन अब सबसे बड़ा एक सवाल जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, एंड ऑब्वियसली यू गाइज आर जस्ट बिट कंफ्यूज अबाउट दैट, सर हम कहां से स्टार्ट करेंगे? द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक इश्यू हियर. देखिए, आपको बोला है कि कैपिटल अकाउंट बनाओ. मैं कहूंगा स्टार्ट यहां से करना है. ऑब्वियसली आप देखिए बैलेंस शीट में जितने बैलेंस है ना, उसमें कैपिटल ड्रॉइंग्स ये आपको दिख रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिख रहा है, ठीक है, बाकी सब ओके है. देखिए दोस्तों, यहां पर मैं कहूंगा कि पहले इस प्रॉफिट को, इस ड्राइंग को, इस कैपिटल को कैपिटल अकाउंट बनाओ, पहले बैलेंस रख दो. देन जस्ट स्टार्ट थिंकिंग हमें उनको क्या पेमेंट करना है, पार्टनर्स को क्या मिलेगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अप. सो ओवर हियर इन माय आंसर आई डिड द सेम थिंग. What I did, I started with the part number 2, and intentionally, friends, for our practice,
आई हैव केप्ट इट ब्लैंक। चलिए शुरुआत करते हैं। सो यहां पर पहले तो जो ड्राइंग्स दिया हुआ है, चलिए रिड्यूस करते हैं। 136, 90, 46। यस फ्रेंड्स, बी विथ मी। 1,36,000 बैलेंस कैपिटल 90, 46। आई होप आप समझ रहे हैं मैं कैसे इसे लिख रहा हूं। फ्रेंड्स, जब ये अकाउंट्स मैंने पहले से ही ड्रॉ किए हैं, I hope you obviously will like to do yourself as well. Please pause the video and then start doing in your manner, and then together with me you can verify the answer. Drawings देखिए बैलेंस शीट में दिया है, it is provided in balance sheet 50, 46 and 34. 50, 46, 34. Drawings, I hope you get it. 50, 46 and 34,000. See, simply I have done this much. Another thing is, in the profit and loss account which is provided, 246,800. Is there anything? See, depreciation on machine is also there. Machine and machines depreciation. But this profit 248,600. Shall I consider and take it in my profit and loss statement? Yes, it is obvious to do this. See, यहां पर सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, बैलेंस शीट के बाद की लाइन पहले कंप्लीट करिए। एक एडजस्टमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अभी हमें एडजस्ट करना बाकी है, तो क्या करेंगे, लिखा ही हुआ है यहां एडजस्ट करना बाकी है। सो आई शैल डू दिस वे दैट इन माय कैलकुलेशन इन द प्रॉफिट्स ऑफ 248,600 द बैलेंस 27,200 वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए 10% हम क्या करेंगे, हम अगर समझते हैं P&L अप्रोप्रिएशन, वी डेबिट देयर, वी क्रेडिट इट हियर 10% ऑफ द कैपिटल, 10%। तो ये 1,36,000 है ना, ये 90 है, ये 46 है, उसका 10% करिए। चलिए 10%, 13,600, 10% 9,000, 10% 4,600। दोस्तों यहां पर अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो चुका माइनस, मेरा प्रॉफिट जो बच गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रेशियो 532। रेशियो आपको पहले लाइन में ही दिया है। इन दिस रेशियो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट 110,700। लेट मी पुट इट, सी 110,700, देन वी हैव 66,420, 66,420, प्लीज पुट इट, एंड 44,280, 44,280। See, this is how I have done with the profits as well. मैं उस क्वेश्चन के पहले कैपिटल बैलेंस को लिख रहा हूं, फिर क्वेश्चन की सीक्वेंस में ही जा रहा हूं। Over here, I am now receiving certain other things in the question. There is one of the company M&O. They made the M&O Private Limited. ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड जो है उसकी ऑथोराइज कैपिटल दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, टर्म्स एंड कंडीशन आर एज अंडर, इंपॉर्टेंट। इन टर्म्स कंडीशन पे कंपनी जो है टेक ओवर करेगा बिजनेस को। समझ सकते हैं कि यहां मशीन 140। अब हां, अगर किसी मशीन को ज्यादा पैसों में अगर कन्वर्ट होके वो कंपनी में जा रहा है तो फर्म को फायदा है, दैट्स अ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। यू गाइस कैन कंसीडर दिस वन विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन दी कैपिटल। लेट्स सी मशीन, क्वेश्चन में देखो 2,80,000 का डेप्री, 120 मशीन है, लेकिन बी केयरफुल गाइज, दिस वन 140 में टेक ओवर हो रहा है। ओके, सो माय आंसर इज मच क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल 20,000 का प्रॉफिट, आई विल कंसीडर देयर 20,000 प्रॉफिट मशीन in the machine account, whatever the, sorry, it's not a loss, my mistake, it's a profit. I will put it into the ratio 532. ठीक है, so I hope you guys are getting it, 10, 6 and 4,000 मैंने लिख दिया, क्रेडिट कर दिया, बात खत्म है। परंतु we have to be careful about calculation of purchase consideration, in that this is revalued amount at which it is taken over by company. I hope you are getting it. दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि किसी और चीज के बारे में नहीं बताया, पूरा बिजनेस टेक ओवर हो रहा है, एंटायर बिजनेस विल बी टेकन ओवर। सो सभी असेट जितनी भी बैलेंस शीट में है, प्लीज पुट इट इनटू एज इट इज द परचेज कंसीडरेशन। दिस इज द मनी रिसीवेबल फ्रॉम द M&O Limited. M&O Limited will give something. What they will give? A very good point over here. They will issue to the partner number of shares
and in such a class given to the partner by reason of their shareholding as the same right they have interest on capital. And guys, this shows that here they wish the company issued the partner some numbers. ये such numbers क्या है वो नहीं पता. Again, such class of the share by giving them the same right of interest on capital and the sharing of profit loss. Guys, can I say उन्हें interest on capital भी मिले जो अभी मिल रहा है वही, and उनको अपने जितने भी शेयर मिलेंगे वो उनके PSR रेशियो में. अब समझिए, interest on capital is the fixed income, is it? It is. Another way, they want this fixed income. ऐसा कौन सा शेयर है जिसमें फिक्स इनकम मिलती है? प्रेफरेंस शेयर. बस यहां पर टोटल परचेज कंसीडरेशन नहीं बोला तो समझ जाना है, क्लियरली नहीं बोला है, समझो. तो भाई एक बात क्लियर है कि परचेज कंसीडरेशन इज इक्वल्स टू नेट असेट. तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी असेट सब जो हमको बैलेंस शीट में दिख रही है, असेट माइनस लायबिलिटी, नेट असेट इज इक्वल्स टू परचेज कंसीडरेशन. कितना कितना, थोड़ा थोड़ा प्रेफरेंस, थोड़ा थोड़ा इक्विटी, समझते हैं उसी का कैलकुलेशन. सो दोस्तों यहां पर ऑलरेडी आई हैव इंडिकेटेड इन्वेंट्री रिसीवेबल, दिस इज द बैलेंस शीट वैल्यू, दिस इज द बैलेंस शीट वैल्यू. आई विल पुट इट लाइक दिस, BSV. आई होप यू गेट इट, बैलेंस शीट वैल्यू. लायबिलिटीज मैंने माइनस किया. फ्रेंड्स, ये जो मैं चीजें आपको कंसेप्चुअली बता रहा हूं, अगर ये आप रिवाइज करते हुए करते हो तो जस्ट एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होती है. बड़े बड़े चैप्टर्स भी आपके सामने फिर बेकार. बस ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. ओवर हियर नेट असेट यू गेट 3,32,000. रुकिए, अब 10% इंटरेस्ट, अगर उनको डिविडेंड भी फिक्स चाहिए, समझो इंटरेस्ट जितना ही डिविडेंड फिक्स मिलना चाहिए, दे विश टू टेक इट. कैन आई से उनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतना होगा. सर कैसे बताया आपने, कैसे ढूंढ लिया? तो देखिए 13,600 का इंटरेस्ट मिस्टर एम को मिला था, जाके देख लो. कैन आई से दिस इंटरेस्ट वॉज 10%, डिवाइड करो. अच्छा वो आप समझ गए कि अगर x वैल्यू का 10% 13,600 होता है, वो x वैल्यू कितनी है, अगर इतना प्रेफरेंस शेयर्स मिस्टर एम को दूंगा, उसका 10% ही विल रिसीव द फिक्स्ड डिविडेंड इनकम as he is receiving right now the interest on capital. So with that, the same thing, 9,000 divided by 10%. I hope you get it. And this is 4,600 divided by the 10%. So with that note, here I have indicated that their preference share capital is 2,72,000. रुक जाइए सर, तो ये 60,000 कहां से आया? फ्रेंड्स, दिस इज बैलेंस. 3,32,000 में से 2,72,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सो हाउ मच विल बी द इक्विटी, एंड दिस इज बीन डिराइव्ड लाइक दिस. ओके, 60,000 टू बी कंसिडर्ड. नाउ here it is indicated 60,000. You guys will have to put it into the ratio 5 into 3 into 2. 5 in 3 into. I hope you guys are getting it. So friends, in this way they will be receiving 30, 18 and 12 equity shares. चलिए इसकी एंट्री हम क्या कर सकते हैं? Friends, the company will give to the firm and actually will be given to partner. मतलब पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कौन? गिवर. गिवर MNO लिमिटेड. पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, MNO क्रेडिट. जर्नल एंट्री के साथ ही यहां पर आई विल पुट इट. बट पार्टनर्स को तो हम शेयर्स दे रहे हैं, हमें वो डेबिट लिखने होंगे. सी माय सिंपल कैपिटल अकाउंट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. 1,36,000, देन 90,000 प्रेफरेंस एंड 46,000. क्या मिल रहा है उनको? देखो, द preference shares of MNO Limited. One of the problem in the suggested answer here, उन्होंने preference share capital लिखा. गलत बात. The guys are receiving the preference shares in MNO Limited. They are becoming the shareholders. Yes, एक concern ये है कि वो MNO Limited इनकी ही है. So हम ये बोल सकते हैं जरूर कि शायद ही preference share capital भी लिखते तो कोई problem नहीं था. They are not the different shareholders, they are itself the main concerned shareholders. And equity, चलिए इक्विटी हमने ढूंढा था फ्रेंड्स, ये रहा 30, 18 and 12. 30, 18 and 12.
सो दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन का इतना पार्ट तो समाप्त हो गया। हमें यह पता चला, सॉरी, ओवर हियर वी गेट टू नो दिस वन कि बिफोर द ट्रांसफरिंग बिजनेस पार्टनर्स वांट टू विथड्रॉ सम मोर मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट। दे विश के बैंक अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रहेगा। रुक जाइए, मैंने इसीलिए ही इधर एक क्लैरिटी कर दी थी इन द आंसर इटसेल्फ। बड़ी प्रॉब्लम, देखिए 1 लाख ही लिखा है मैंने दोस्तों, बाकी का बैलेंस पार्टनर्स विल लाइक टू विथड्रॉ, पर कौन कितना विथड्रॉ करेगा दैट्स नॉट डिटरमाइनेबल ओवर हियर। इंस्टीट्यूट ने काफी अच्छे तरीके से उसे डिटरमाइन करते हुए आपको आंसर बताया, एवरीथिंग इट इज देयर, नो वरी, बट हियर माय सिंपल सजेशन, व्हाट टू डू विद द आंसर। सर 1 लाख का बैलेंस तो रखना ही है ना, वो तो कंपनी लेकर जाएगा। अब जो बच गया ना, सिर्फ उतना अमाउंट आप, जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी डिफरेंस आई एम इंडिकेटिंग हियर गाइस, दिस इज आई एम बॉर्डरिंग इट, ये डिफरेंस एडिशनल विड्रॉवल बैंक अकाउंट के नाम पे लिख दो, बात खत्म। सी दिस इज वेरी सिंपल, मेरे कैपिटल अकाउंट में जो भी डिफरेंस बच रहा है वो दे विल लाइक टू टेक ओवर। सी व्हाट इज द डिफरेंस, आई होप यू विल नाउ देन गेट टू द आंसर। आप अपने आप ये आंसर जरूर ढूंढ पाएंगे। ये डिफरेंस, और इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में कुछ अमाउंट उसमें ढूंढी है अलग से वर्किंग नोट बनाकर। आई हैव कंसीडर्ड दिस वे, आई होप यू विल गेट इट। दोस्तों क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यहां पर आपको बोला था कि कंपनी की बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द एक्विजिशन बताइए। सो इन दिस सिनेरियो समथिंग दैट टू बी टेकन इन माइंड इज, over here the company's balance sheet I am taking is here, the MNO Limited after takeover. Equity, liabilities, shareholders fund, share capital. How much share capital is equal to the net consideration, the purchase consideration. And in this the net purchase consideration हमने ढूंढा था, लेकिन I hope you know very well, इसमें नोट्स में आपको लिखना कितना है, that something relates to the preference share capital 2,72,000 and equity is 60. Authorized capital भैया टोटल में नहीं लेना है, be careful. Authorized capital and preference over here I have considered. चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। The trade payables as it has been taken over, then the property plant equipment, machine 140 revalued amount, inventories as it is, cash and cash equivalent 1 lakh. So in this manner the accounts and the balance sheet rather for the new company is completed. Then let me take you to the next question, number 2B, question 2B. एक फ्रेंड्स छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज आस्किंग जस्ट फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क का क्वेश्चन है कि ए लिमिटेड हैविंग 80% इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, वोटिंग पावर, मतलब ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड सब्सिडरी। यहां पर ए लिमिटेड समझिएगा होल्डिंग कंपनी, सेलिंग द गुड्स टू सब्सिडरी, दिस इज डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। किसने बेचा? ए ने, तो किसका प्रॉफिट में होगा? ए का। अच्छा किसके स्टॉक में होगा? भाई स्टॉक तो बी के पास है ना, तो समझिए 180 लाख का गुड्स 200 लाख में बेचा, 20 लाख का प्रॉफिट है। ध्यान रखिएगा, एंटायर इन्वेंट्री रिमेन अनसोल्ड विद बी लिमिटेड एट द फाइनेंशियल ईयर एंड। हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे ट्रीट करेंगे? सीधी बात है फ्रेंड्स, यहां पर रेफरेंस देना बहुत जरूरी था आंसर के साथ। ये एक छोटा सा पॉइंट था रेफरेंस का, लेकिन आई विल पुट इट लाइक दिस, रेफरेंस टू दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, प्लीज बी केयरफुल। देखिए आंसर ये लोगों तो ऐसे ही दे रहे हैं कि बस दिस इज डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, ये प्रॉफिट जो है हम ये मिस्टर ए की स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में से, मतलब उसमें कंसोलिडेशन में माइनस भी करेंगे, प्लस हम परचेज और सेल में माइनस करेंगे। गाइज दैट्स ओके, एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में भी माइनस करेंगे, फाइन, ये तो आप लिख ही सकते हो, इतना बेसिक। बट यहां रेफरेंस AS 21 का देना जरूरी है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इट इज, सो विल बी एलिमिनेटेड। आई होप यू आर गेटिंग इट। विद दैट हियर वी आर नाउ मूविंग टू इवन बिगर क्वेश्चन। द क्वेश्चन रिलेट्स टू द कंपनीज अमालगमेशन। लास्ट लाइन पहले पढ़िए, क्या बोला है? प्रिपेयर लेजर टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बीटा लिमिटेड। रुक जाइए दोस्तों, अमालगमेशन चैप्टर का दी
आरटीपी एमटीपी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, मैंने आपको ऐसा बताया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट किसके क्लोज होंगे, सेलर, वेंडर कंपनी। तो सही बात है, बीटा लिमिटेड एक वेंडर कंपनी है। चलिए ये पता चल गया। और बात बताइए, हमने ऐसा सीखा था वेंडर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने होते हैं, रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड दी परचेसर्स अकाउंट, ये अकाउंट प्रिपेयर करते थे। मैंने एक नेमोनिक आपको बताया था, OLX मेथड याद करते थे। हमारा OLX मतलब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, हमने उस पर अपलोड कर दिया असेट्स को, लायबिलिटीज को। परचेजर आया, OLX में से लेकर गया क्रेडिट, याद हो रहा है आपको फ्रेंड्स? ऐसी कुछ बातें हमने की थी, काइंडली रिमेंबर दैट। एंड नाउ हियर आई एम मूविंग टू शो ऑफ द अकाउंट्स। व्हाट शुड आइडियली आई शैल कंसीडर over here, as the question is asking about the Beta Limited's books of accounts to be closed, only necessary accounts I will prepare. I won't think about कि सर हमारा परचेजर क्या कर रहा है। Yes, for that purchasers calculation we will consider the goodwill and purchase consideration का हम पार्ट जरूर गिनेंगे। These are the revalued assets. This is what which method we are looking, guys. आई होप यू अंडरस्टैंड। जब भी एक भी एसेट रिवैल्यू हुआ है अमालगमेशन में, समझ जाइएगा परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग। डोंट गो फॉर द पूल मेथड, रादर इंटरेस्ट ऑफ पूलिंग, नो, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, माय मिस्टेक फ्रेंड्स। ओवर हियर फर्स्ट स्टार्ट आई शुड मेक रियलाइजेशन अकाउंट, बीटा लिमिटेड। थिंक अबाउट सेलर, थिंक अबाउट OLX मेथड दैट वी हैव अंडरस्टूड। सबसे पहले रियलाइजेशन में सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से जितनी भी बुक वैल्यू ऑफ असेट है वो, जितनी भी लायबिलिटीज है वो, इन्वेंट्रीज आर टेकन ओवर एवरीथिंग, रादर बीटा लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय LX, मतलब पूरा बिजनेस टेक ओवर हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सो वी कैन सी दिस थिंग लाइक बीटा लिमिटेड की गुडविल बिल्डिंग, सो मशीन्स, इन्वेंट्रीज, लेट मी टेक इट in the realization account. I will put it like this, all the assets, पहले तो sundry assets, is it allowable? Yes friends, in the realization it is allowable। जितनी भी assets है friends टोटल करते हैं। so let us check in the answer। सर टोटल किसका कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, देखिए गुडविल 280, 420, इन्वेंट्री 280, 56, all these, इन सभी का टोटल फ्रेंड्स, टोटल कितना है, चलिए 15,96,000। So I will put it 15,96,000 रियलाइजेशन में असेट्स डेबिट। लायबिलिटी साइड पे कुछ लायबिलिटीज है, जैसे कि द रिटायरमेंट ग्रेजुएटी फंड, द पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। चलिए कितना है क्वेश्चन में, प्लीज पुट इट। द रिटायरमेंट फंड इज 56,000 and 2,24,000। लेट मी पुट इट, 56,000 is the fund, 2,24,000 is the trade पेबल्स। आई होप यू गेट इट गाइस, ट्रेड पेबल्स। सुनिए और आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने मेरे इस बैलेंस शीट में से इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं पे मैंने एडजस्ट किया। रुकिए सर, इक्विटी दिख रही है, जनरल रिजर्व दिख रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स दिख रहे हैं, उनका क्या करें? समझते हैं फ्रेंड्स, इनका स्पेसिफिक अकाउंट है। सो इक्विटी 840, जनरल रिजर्व 196। चलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सो दिस इज 8,40,000, दिस इज क्रेडिटेड, सी इट इज पेबल टू देम, देयर क्रेडिट बैलेंस 1,96,000। आई होप यू गेट इट। दिस इज द जनरल रिजर्व पेबल टू देम, आई हैव कंसीडर्ड हियर। सो 196, 840 is done. Then what about preference shares? 280. Let me put it, preference shareholders account, credit balance capital 2,80,000। I hope you get it friends. Okay, so पहले तो जो बैलेंस शीट वेंडर की है उसके मेंबर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स होल्डर्स आर देयर, वी हैव ट्रांसफर्ड द वैल्यूज एंड देन असेट लायबिलिटीज भी हो चुका है। अभी बात आती है परचेज कंसिडरेशन की। देखिए मैंने ये किया ना, रियलाइजेशन में मैंने क्या लिखा, असेट्स लिखे, लायबिलिटीज को लिख दिया, पेबल्स को लिख दिया, मैंने OLX पे अपलोड किया। अब परचेजर आया, परचेज कंसिडरेशन नेगोशिएट हुआ और वो परचेजर हमारे रियलाइजेशन में से असेट लेकर गया, रियलाइजेशन क्रेडिट, परचेजर डेबिट, LX कंपनी परचेजर। सो वर्किंग नोट, लेट अस प्रिपेयर दिस। दिस इज हाउ वी हैव डन इट।
परचेज कंसिडरेशन का वर्किंग नोट। फ्रेंड्स एक बात है, रेलेवेंटली इट इज नॉट प्रोवाइडेड दैट इक्विटी शेयर ओवर हियर सेड इक्विटी शेयर वालों को इक्विटी शेयर ऑफ एलएक्स लिमिटेड 5% प्रीमियम पे मिलेंगे, 5% प्रीमियम, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 8% शेयर्स ऑफ द एलएक्स लिमिटेड। सी इट इज सिंपली गिवन के प्रेफरेंस शेयर्स वालों को 10% प्रीमियम पे इश्यू करेंगे, पेड एट प्रीमियम। गाइस द वर्ड इज रेलेवेंट, मैं कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूं। पेड एट प्रीमियम है मतलब क्या एलएक्स लिमिटेड सिक्योरिटीज प्रीमियम गिनेगा? नहीं 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 नहीं, दे आर गिविंग द वैल्यू ऑफ दैट मच शेयर। एंड जब अगर हम इक्विटी देखते हैं, इश्यूड द इक्विटी शेयर एट 5% प्रीमियम, यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। लेट अस कंसीडर, सर पहले टोटल परचेज कंसीडरेशन तो बताइए। नो वी आर नॉट गेटिंग, मतलब कि परचेज कंसीडरेशन इक्विवेलेंस टू नेट असेट, ये रहा पॉइंट नंबर बी एंड सी। नेट असेट्स चलिए कैलकुलेट करते हैं, 140, 420, 480, ये रहा। दिस वन वी हैव, जस्ट पुट इट द वैल्यूज ओवर हियर। गुडविल 140, देन बिल्डिंग कितना है बिल्डिंग फ्रेंड्स? बिल्डिंग 420, मशीन 480, 420, 480। इन्वेंट्रीज कहीं पर लिखा है कितना इन्वेंट्री? सर इन्वेंट्रीज टेकन ओवर 10% लेस वैल्यू। कहाँ कितना इन्वेंट्री था? 490 माइनस 49,000। लेट अस चेक इट, 490 माइनस 49,000। इन्वेंट्रीज आर एट आई थिंक इट इज 441। चलिए 4,41,000 माइनस 10% वैल्यू। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट, अब प्रॉब्लम है, ट्रेड रिसीवेबल्स 280 है, सिर्फ उसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है उसे अलग से हमने इधर कंसीडर करना है। बट ओवर हियर वी कैन से द क्वेश्चन प्रोवाइड्स, उसे हम कितना डाउटफुल डेट कंसीडर करेंगे? 7.5%। सो वाइल टेकिंग इट ओवर आई विल पुट इट 280 माइनस 21। सी दिस विल बी आई नीड गाइज दिस वन, 2,59,000। समझ रहे हो? 7.5% माइनस करके वैल्यू किया। सो विल पुट इट 2,59,000 माइनस 7.5%। कैश एट बैंक, जो भी कैश एट बैंक है फ्रेंड्स, टेक इट कैश एट बैंक, द अमाउंट इज 56,000, पुट इट 56,000। ग्रेजुएटी फंड कितना था फ्रेंड्स? ग्रेजुएटी फंड वॉज अगेन समवेयर अराउंड, yes it was 56 and 224 is the payables। 56,000 gratuity fund, payables 2,24,000। सो दोस्तों एक बार रिकंसाइल कर लीजिए, आपका आंसर आना चाहिए 14,84,000। अब देखते हैं बात, सबसे पहले देखो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ दी बीटा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स तो 2,80,000 है। ओके उनको 10% प्रीमियम ऐड करके रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उन्हें पैसा मिलेगा इतना। तो सिंपल है, 2,80,000 प्लस 10%, 3,08,000 का टोटल परचेज कंसिडरेशन तो इन्हीं को मिल जाएगा। इनको इतने शेयर मिलेंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर्स। कौन देगा? तो के एलएक्स लिमिटेड विल गिव इट टू दी बीटा लिमिटेड और उनके शेयर होल्डर को बांट देंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि 14,84,000 you reduce the 3,08,000, something you get is the 11,76,000। परंतु 11,76,000 is at the rate of 105 rupees। Guys, this is including 5% premium at issued. It is issue at 5. Let us see that. Purchase consideration 14,84,000, इसकी एंट्री हमारे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहा 14,84,000। हम क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन में 14,84,000। मोस्ट रेलेवेंट व्हेन आई डू दैट ओवर हियर, मुझे ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो भी एलएक्स लिमिटेड से शेयर आएंगे वो हमारे शेयर होल्डर को हम बांटेंगे। 11,76,000 फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा 11,76,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को एलएक्स लिमिटेड के शेयर्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड
3,08,000 हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एलेक्स लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हम इश्यू करेंगे। अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना था, क्वेश्चन भी खत्म है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में आप देखो डिफरेंस आ रहा है लास्ट में दो अकाउंट क्लोज करने का। फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन, सेकंड इज द इक्विटी शेयर होल्डर्स। फ्रेंड्स पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर क्लोज कर रहे हैं, एक बात पता चल रही है कि सर 28,000 का प्रीमियम एक्चुअली रियलाइजेशन का लॉस बनेगा। इधर देखिए क्रेडिट डिफरेंस, मतलब रियलाइजेशन में डेबिट, रियलाइजेशन में आई विल पुट इट डेबिट 28,000। अब रियलाइजेशन में जो भी डिफरेंस अकाउंट के अंदर आएगा दैट इज बेसिकली ओवर हियर इट इज द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन फॉर द इक्विटी होल्डर्स। दिस इज 1,40,000। दिस 1,40,000 इज क्रेडिटेड टू दैट अकाउंट 1,40,000। आपका आंसर तभी सही मानेंगे, आपको मान जाना कि ये सही किया है आपने बिल्कुल, जब अगर आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट का बैलेंस 0, बोथ द साइड टोटल्स आर सेम। सिंपल बात है। We had to give them 840, we had to give them 196, we had to give them the even profit on realization they realize. We have given them 11,76,000 in total, the number of shares that we have received from the you say Alex Limited, and that's why over here this is been simply tallied. ये account इधर close होता था है। I hope friends you will understand it and you have understood the first part related to the seller's books of accounts to be closed. These are relevant accounts. Now most importantly, second part of the question, in this question the question is asking about the Alex Limited books. Question is asking their journal entries. अब मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं, 3 जर्नल एंट्री किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में परचेजर की 3 जर्नल एंट्रीज फिक्स होती है। बिजनेस परचेज, असेट आने देने का मतलब कि टेक ओवर एंट्री, सेकंड एंट्री, और थर्ड एंट्री होती है पेइंग द परचेज कंसिडरेशन बाय मैनर ऑफ शेयर्स एंड कैश। फ्रेंड्स आफ्टर दीज 3 एंट्रीज इंटेंशनली मैंने यहां पर कुछ स्पेस रखी है। आई विल गाइड यू कि टिपिकल क्वेश्चंस में कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है वो ये 3 एंट्रीज के बाद आते हैं, उससे पहले उनके बारे में सोचना नहीं है। चलो समझते हैं फ्रेंड्स। ओवर हियर बिजनेस परचेज अकाउंट कितने में खरीदा? 14,84,000। आई होप यू गेट इट। परचेज कंसिडरेशन की पूरी रकम 14,84,000। सी दिस इज परचेज कंसिडरेशन, दिस वाई। देन गुडविल, गाइस गो फॉर द वर्किंग नोट नंबर 1। Goodwill purchase 1,40,000, building 4,20,000, machine 4,80,000, inventory, guys inventory revalued था, देख लीजिए 441, 259, 56, we'll talk about that. Inventory 441, please note it down guys, 441. Receivables 2,80,000, रिसीवेबल्स का प्रोविजन 21,000, क्रेडिट बैंक अकाउंट 56,000। कोई पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है, पूरा कैश में ही है, वो शेयर्स में है सब कुछ। देन ग्रेजुइटी 56,000, ट्रेड पेबल 2,24,000, क्लोजिंग द बिजनेस परचेज अकाउंट 14,84,000। दिस विल बी टैलीड। अदरवाइज अगर इधर डिफरेंस आता डेबिट साइड की एंट्री पे, मतलब गुडविल, क्रेडिट पे आता कैपिटल रिजर्व। विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड एंट्री। देखो असेट्स आ रहा है, असेट्स अकाउंट डेबिट, सो लायबिलिटीज दे आर कमिंग, दे आर क्रेडिटेड एक्सेट्रा। बिजनेस परचेज हैज बीन क्लोज्ड। थर्ड एंट्री नाउ वी आर मूविंग, लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड। सो फॉर दैट लिक्विडेटर, सी फर्स्ट एंट्री में ये रहा, उन्हें क्रेडिट किया था। काय को क्रेडिट किया था? उन्हें कुछ देना है। हम क्या दे रहे हैं उनको? शेयर्स दे रहे हैं, थोड़े से प्रेफरेंस, थोड़े से इक्विटी। समझते हैं कितना प्रेफरेंस कितना इक्विटी। सो देखिए 14,84,000 के पीसी परचेस कंसिडरेशन के सामने हम उन्हें 3,08,000 के प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे थे। लेकिन किंतु यहां पर इक्विटी शेयर में थोड़ा सा बाइफर्केशन, 11,76,000 में थोड़ा सा प्रीमियम है 5%, 105%। 105 का प्रपोर्शन आप निकालिए गाइज, यू विल गेट इट लाइक दिस। माय आंसर विल बी 1 मिनट गाइज, सर्टेनली 1,20,000 and 56, 1120,
my mistake, 11,20,000 and another is 56,000 the premium. मैंने क्या किया, 11,76,000 को 105 प्रोपोर्शनेट 100 और 5 में डिवाइड किया. सो आई होप फ्रेंड्स यू गॉट इट टू अंडरस्टैंड इन दिस. सिर्फ इतना ही क्वेश्चन का व्यवहार है. क्वेश्चन बहुत इजी था. टिपिकल एडजस्टमेंट्स. परचेजर क्या करता है, सी यहां टेक ओवर हो चुका. टेक ओवर की ये 3 ही एंट्री होती है, बट ओवर देयर द एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, द एडजस्टमेंट ऑफ कन्वर्टिंग डिबेंचर्स, ओल्ड डिबेंचर को नए डिबेंचर में कन्वर्ट करना. आई होप यू गेट इट. देन दी अनदर एडजस्टमेंट, से फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड टू दी म्यूचुअल इंडेप्टनेस, जैसे कि कॉमन डेटर क्रेडिटर ट्रांजैक्शंस. ये सभी चीजें ये 3 एंट्री में नहीं देखी जाती, उसके बाद हम स्पेसिफिकली कंसिडर करते हैं. अनदर थिंग इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर गुडविल एक साथ है उन दोनों को अगर राइट ऑफ कर रहे हैं. इंपॉर्टेंटली अगर कोई एक्सपेंस पे किया है, किसने, परचेजर ने. अगर परचेजर ने कोई लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया है तो उसकी एंट्री. सो ये 5 एंट्री रिलेवेंटली इसका हम अकाउंटिंग आफ्टर मर्जर देखते हैं. सो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय परचेजर. फ्रेंड्स, just want to revise the concepts very briefly. I am indicating it here, but please कभी भी डरिए मत. ये 3 जर्नल एंट्रीज का पहले आप कंसीडर करिए कोई भी डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग एंड गो अवे विद द फ्लो. डोंट स्टक कि मुझे स्टार्ट कहां से करना है. देखिए अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो पहली एंट्री एटलीस्ट डेबिट क्रेडिट लिख दो, आपका माइंड फिर दौड़ने लगेगा. फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट इट. सो विद दैट नोट, क्वेश्चन नंबर we were discussing, that was question number 3 I have done with. I hope you get it. एक क्वेश्चन 3 में एक और डिफरेंस पूछा गया है. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड परचेज मेथड. फ्रेंड्स, शुरुआत करते ब्रीफली मैं कुछ समझाना चाहता हूं कि इन दिस मेथड बेसिकली वी कंसीडर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड द परचेज मेथड. अगर मैं बेसिक ब्रीफ बताऊं तो इन दिस पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या हमें कैश अलाउड है? परचेज मेथड में सी रीवैल्यूएशन कोई भी अलाउड नहीं है. परचेज मेथड में अलाउड है ना. परचेज मेथड में नेगोशिएटेड रिवैल्यूएशन प्राइसेस पे परचेज होते हैं. इन दी हियर वी डोंट कंसीडर गुडविल और द कैपिटल रिजर्व. डू वी कंसीडर इट? नो. इन दी परचेज मेथड वी टेक इट. हियर हम इन दी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में गुडविल का नाम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? लॉस ऑन मर्जर. कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट ऑन मर्जर. हम नेट कंसीडरेशन, लेट अस चेक, परचेस कंसीडरेशन को हम पेड अप कैपिटल ऑफ वेंडर सेलर कंपनी से कनेक्ट करते हैं. हम यहां पर परचेस कंसीडरेशन को नेट असेट से गिनते हैं परचेज मेथड के अंदर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. सो एज ए बेसिक डिफरेंसेस है. देन उसके अलावा के पॉइंट्स भी इस थियरी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है. सो काइंडली जस्ट रिफर टू दैट. एंड वी आर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैश मार्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बैंकिंग चैप्टर. द बैंकिंग chapter over here which is asking capital fund tier 1 tier 2 finding out the risk adjusted assets. I hope you would have also have understood that how much portion you consider for the different risk adjusted factor for the calculation over here. Let me consider this. Equity share capital funds tier 1 tier 2 में है. टायर 1 और टायर 2 में व्हेन आई से टायर 1 कैपिटल, इक्विटी, स्टैट्यूटरी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस मतलब माइनस होगा. सी दिस इज डेबिट बैलेंस, आई विल रिड्यूस इट. देन कैपिटल रिजर्व में अगर रिवैल्यूएशन का पार्ट है 25 करोड़ का, तो वो पार्ट वैसे भी 55% डिस्काउंटिंग माइनस करते हुए हमारे रिजर्व फंड में जाएगा टायर 2 में. सो लेट अस कंसीडर द आंसर. सिंपली आई विल ब्रीफ द आंसर. सी दिस इज हाउ इट विल बी कंसीडर्ड. Tier 1 state of equity, statutory reserve and capital reserve. See, out of the total capital reserve, how much it was? You know very well it was 130 or something. Let me check guys in the question.
130, उसमें से 25 जो है वो तो रिवैल्यूएशन था, 130 माइनस 25 तो 105, 30 तो P&L का डेबिट है, एंड ओनली रिवैल्यूएशन का जितना भी अमाउंट था उसमें से 55% डिस्काउंटिंग करके बाकी का टायर 2 कैपिटल, टायर 1 का टोटल है 1145 एंड टायर 2 जो है उसका टोटल है 11.25। व्हाट अबाउट रिस्क एडजस्टेड असेट्स? सभी असेट पे जाइए। आई विल से आपको इस सीक्वेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू, परसेंटेज ऑफ वेट, अमाउंट, दैट्स इट। पहली असेट कैश विथ आरबीआई, जीरो रिस्क, इसमें कोई रिस्क ही नहीं होता है, सीधी बात है, आरबीआई के पास है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। बैलेंस विद द अदर बैंक 20% रिस्क फैक्टर, ये परसेंटेज आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, दीज आर वेरी कैश मार्क्स। ओवर हियर क्लेम्स ऑन दी बैंक्स, अदर बैंक्स क्लेम्स, उनसे पैसा लेना है, दीज आर ऑल्सो कंसीडर 20% रिस्क फैक्टर। देखिए इकोनॉमिक की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ज्यादातर इस प्रकार के रिस्क फैक्टर्स एक्सेट्रा को, बैंकिंग कमिटी रिलेटेड पर्सोनल्स, इकोनॉमिस्ट गाइड करते हैं आरबीआई को कि इतना रिस्क फैक्टर परसेंटेज आपको कंसीडर करना चाहिए। देन अदर इन्वेस्टमेंट्स, जहां अदर की बात आए 100% रिस्क फैक्टर। सो गारंटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बीच में आएगा, आरबीआई बीच में आएगा, कोई रिस्क नहीं, 0% रिस्क फैक्टर। तो रिस्क एडजस्टेड असेट ढूंढ लिया, बस इतना ही पूछा था, नथिंग एल्स। सो फ्रेंड्स आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड, सिर्फ क्वेश्चन में आपको तो ये दो चीजें ही ढूंढनी थी, आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं ढूंढना था। सो प्लीज कंसीडर दैट हम बहुत ही जल्दी में कहीं पर पूरा आंसर गिन के ना आ जाए। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4B, I think it's 5B if I'm not wrong, yes, 4B rather. The question relates to non-banking company. क्वेश्चन के अंदर आपको ढूंढना है नेट ओन फंड्स एज पर दी स्पेसिफिक गाइडलाइंस डायरेक्शन ऑफ आरबीआई 2016। नेट ओन फंड का कंसेप्ट सिंपली विल स्टार्ट विद द कैपिटल, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। आप देख सकते हैं कि कैपिटल प्लस रिजर्व्स 400 और 2000 तो था। ओन फंड्स, खुद का फंड मतलब बोरोड की बात नहीं है, लोन नहीं। तो दोस्तों हियर दैट इज डन। हाउएवर इन दिस फंड you can see on the asset side there is some deferred expenditure, ये चीज deferred expenditure, सर ये तो माइनस ही हो जाएगा ना? yes it will be, it will reduce the own fund, the net worth. so over here when I reduce this 800, my net fund will be then 1600. however investments of these funds are considered in the subsidiary, in the subsidiaries debentures and etc. 400। अब बचा क्या? सी समझिए, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरी नेट वर्थ है 1600, लेकिन मैंने मेरी नेट वर्थ में से 800 जो है मेरी सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया है, दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट। तो मेरी कौन सी नेटवर्थ मेरे पास बच गई? इट इज विथ मी, दैट इज 800। फ्रेंड्स ये जो टोटल 1600 नेटवर्थ थी उसका 10% दैट इज 160। ये जो नेटवर्थ है उतना नेट ओन फंड, सी आई विल से 160, आई विल एड इन माई 800, व्हाई इट इज कंसीडर्ड। सी मैं ऐसा कहूंगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट्स विच आई कैन नाउ even consider as my own balance with the profits of the investment। समझ रहे ऐसा कि हमें बचा था मेरा 1600, उसका 10%। सर ये 10% क्या है? सी जनरली इट इज इंडिकेटेड बाय एनबीएफसी दैट उनका 10% का फंड जो है वो कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली विदड्रॉ कर सकते हैं, एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन विदड्रॉ। सो इट इज कंसीडर्ड दैट रेडिली अवेलेबल नेट ओन फंड क्या है? तो कि 1600 का 10% भी है, 800 तो था लेकिन 10% of 1600 also will be added. With that note 960, this is another way, shortcut to understand this concept. ये इंस्टीट्यूट ने जो किया है उसके अलावा आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं। I hope friends you understand it very nicely and you have understood the concept of the question. Here with that, question number 5C we are dealing. The question provides where the company is redeeming all the preference shares. कंपनी इज रिडीमिंग, देखिए फ्रेंड्स प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन का क्वेश्चन है, रिडीमिंग एट अ प्रीमियम एंड
There is a buyback 25% equity shares at 20 per share. To make the cash available, चले छोड़िए, हमें तो रिक्वायरमेंट पढ़नी है, क्या करना है सर, जर्नल एंट्रीज पास करनी है. द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम मस्ट बी यूटिलाइज टू द एक्सटेंट अलाउड बाय लॉ. रुक जाइएगा फ्रेंड्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम आप देख सकते हो ऊपर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही है 20,000 और हमारे पास इक्विटी है 64, उसका 25%, 16,000 इतना इक्विटी रिडीम करेंगे. सो अब इन दोनों को कंसीडर करते हुए आई विल चेक इट दिस वे, 64 एंड 20. सबसे पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, एंड दैट विल बी लाइक दिस. यहां पर इंस्टीट्यूट ने शुरुआत की है सर इन्वेस्टमेंट से की है. सर ये क्या कर दिया? सो सिंपली व्हाट दे हैव डन, दे हैव कंसीडर्ड फर्स्ट द कैश बैलेंस. आई विल से डोंट वरी, यू कैन स्टार्ट विद दिस एंट्री नोन एज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट. प्रीमियम ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट, इट इज अ लॉस, दैट्स व्हाई आई हैव डेबिटेड टू दिस, टू शेयर होल्डर्स. सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस दिस. नाउ one of the problem over here is, दोस्तों हमें क्वेश्चन में सेक्शन 53 की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा. हियर दिस भूमि लिमिटेड is considered as one of the you say company which is not under the accounting standard norms or rather following Ind AS or something. Securities premium, yes we can utilize. If it is accounting standards we cannot, otherwise we can. assumption लेते हुए एक पॉइंट इधर ऐड कर देता हूं कि ये 2000 का लॉस सिक्योरिटीज प्रीमियम में से मैंने राइट ऑफ कर दिया. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट बायबैक प्रीमियम कितना सर, 16,000 के शेयर को 20 रुपए में खरीद रहे हैं तो 10% का प्रीमियम एंड 16,000 10 रुपीज की कैपिटल, 10 रुपीज. आई होप यू गेट इट. विद दैट नोट 32, 16 and 16. This entire amount, securities premium balance, we can consider for buyback premium. We can utilize 16,000. Securities premium पहली प्रायोरिटी में होता है, लेकिन 2,000 हमने redemption premium में यूज किया. See what you should do best in this small question. हर एक जर्नल एंट्री पर क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है उसमें पेंसिल से इफेक्ट देते जाओ. So guys, with that note, I hope you get it कि टोटल किस तरह से ये लॉस हमने इसको राइट ऑफ किया. बैंक से लोन लिया है, यस हमने 16,000 का लोन लिया, ऐसा प्रोवाइडेड है. हमने पेमेंट भी कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो हमने लिख लिया है. बट सी मच केयरफुल टू बी दैट 20,000 द प्रेफरेंस, 16,000 द इक्विटी. There is a huge balance in general reserve, that much CRR. Never forget about CRR. Face value of the preference, face value of equity that is redeemed 20,000, 16,000. And I hope you get it. So with that note, this little question is also been completed. But yes, the most relevant part to understood was this. Section 55 सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूज के लिए रेस्ट्रिक्शन देता है, परंतु यहां वेयर द कंपनी, हम अजम्पशन कर रहे हैं नॉट अप्लाइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दे आर नॉट अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. यस दे कैन डू दिस, दे कैन कंसीडर सिक्योरिटीज प्रीमियम, दे कैन कंसीडर फॉलो दिस. आई होप यू कंसीडर दैट. फ्रेंड्स, विद दैट हियर वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल. Here we are now having question number 5. In the question, the company do have purchased 80% shares of Power Limited on 1st January for 2,10,000. Okay, let me go for the answer. Question number 5A. This is provided. In the question, the cost of shares was 2,10,000. I hope you get it. हमें बोला गया कि गुडविल ढूंढ लीजिए. ठीक है, हम ढूंढ लेंगे. Another thing, इस शेयर्स को जब अक्वायर किया 1st जनवरी, ऑन दैट डे उस कंपनी का जो कैपिटल था 1,50,000 था.
सी गाइज वेरी केयरफुली, दिस बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज ऑल्सो 90,000. रुक जाइए, कितने शेयर अक्वायर किए सर? 80% अक्वायर किए. 150 एंड 90 का 80% करेंगे. सो 150 का 80, 1,20,000. 90 का 80, दैट इज 90,000 का 80, 72,000. आई होप यू कैन कंसीडर. सो ये हो जाएगा गुडविल ढूंढने के लिए intrinsic value. I hope you understand it. So getting that addition, what is the answer? Let me check it that way. Answer will be like 192. Yes guys, 1,92,000. बोलिए कितना गुडविल है? So I am reducing it. 18,000 का गुडविल. I hope you get it. 18,000 the goodwill. Please check it out. 18,000 the goodwill. I hope you understand it. दोस्तों एक और चीज क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है, लेट अस चेक इट आउट. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड द कंपनी ऑन द प्रॉफिट डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 22,500 एंड व्हाट इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द 1st जनवरी एंड ऑन द 31st दिसंबर ऑल्सो. दोस्तों पहले तो ये डिविडेंड जो है ना 22,500 हियर इंडिकेटेड, मैंने लिखा भी है कि ये पोस्ट एक्विजिशन से है. सो ऑब्वियसली आई विल क्रेडिट, the holding company will credit in their P&L account. Same for the minority, they will be added into the minority interest. So 22,500 का 20% we will do. What about minority interest? Minority interest on the first day simply 150/90, but on the last day 150/90 capital plus the profit minus the dividend paid out, plus the profit minus dividend paid out, and the balance that remains. I hope आप ये ढूंढ पाएंगे. So with that, I'm moving to the next question. Question number 5B. Question provides for King Limited when they have acquired 70% equity shares of Queen. The cost is 140 lakhs rather. इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी प्लान्स की वैल्यू दी है, लेकिन देयर वर सर्टेन रिवैल्यूएशंस. हमें क्या करना है? कंसोलिडेशन के इस प्रकार के छोटे क्वेश्चंस भी आपको जरूर पूछे जा सकते हैं. You guys need to be ready. Over here, goodwill, capital reserve हमको ढूंढना है. But most importantly, this will also consider the valuation, profits and loss. आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का वैल्यू बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डाउन है. Dividend paid by the Queen Limited 20% also there. So I will calculate it like this. Somewhere 1 minute, I need to go to the answer. Friends, first of all net asset ढूंढना पड़ेगा. सीधी बात है. The value of the net asset multiplied by number of shares. Intrinsic value तो मिल सकता है, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट से हम वैल्यूएट करेंगे तो मिल जाएगा गुडविल या तो रिवैल्यूएशन कैपिटल रिजर्व. समझ सकते हैं कि हमें इसे 120 मतलब प्लस 20% किया, इसमें माइनस 10% किया, बाकी सभी असेट एज इट इज है. current asset as it is, loans advances as it is, total assets minus the liabilities, net worth. इस नेट वर्थ का 70%, भाई क्लियर रखिए दिमाग, नेट वर्थ नेट असेट का 70% वो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बीच में आ जाएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व. यहां आप देख सकते हैं वैल्यू इज 193.90. एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हमने कंसीडर किया, बट मोस्ट रेलेवेंटली इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन one of the 14 lakh rather is reduced. क्यों ऐसा किया? दोस्तों प्लीज सी द क्वेश्चन अगेन. आप समझ सकते हैं कि एक्विजिशन जो है 31 मार्च 20 पे हुआ, उसी दिन पे कुछ डिविडेंड भी दिया है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड 10%, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपया. गाइज आई विल से सॉरी, माई मिस्टेक, इट इज 20. ओवर हियर आई कैन से दैट फेस वैल्यू 10 रुपए का, हम 22 रुपए का हम कंसीडर करेंगे टोटल डिविडेंड. कैन आई से दैट सिंपली, हमारा ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में होने की वजह से इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम दिस वैल्यू 20 परचेज प्राइस 7 लाख नंबर ऑफ शेयर्स 2 पर शेयर, 7 लाख शेयर्स पे 2 पर शेयर
हमको डिविडेंड मिला। सी 20 रुपीज का प्राइस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो आई होप यू गेट इट कि इतना डिविडेंड प्री एक्विजिशन था, मैंने कॉस्ट में से माइनस किया। अब कंपेयर करिए, आपका नेटवर्थ वैल्यू 193.9, आपका कॉस्ट 126, आपने ज्यादा पे किया? नहीं, आपने कम पे किया। यस, अ प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व इज क्रेडिटेड, कैपिटल रिजर्व टू बी क्रेडिटेड। I hope friends you will understand it nicely and would have understood it better to get it. So with that note, here also we are done with the next question we are going through for question number 5B. Relates to summarize balance sheet of Preeti Limited. Question के अंदर you need to give journal entries. Problem is question में सिर्फ आपको कुछ surrender value मतलब शेयर सरेंडर का कंसेप्ट है। बैलेंस टू द P&L टू बी रिटर्न ऑफ, आई होप आप जानते हैं कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडक्शन का एक क्वेश्चन है। लेट अस स्टार्ट कैलकुलेटिंग। मैं सिर्फ इधर ब्रीफ कर रहा हूं जर्नल एंट्रीज। सब डिवीजन ऑफ 10% इक्विटी सेट्स, सी इट इज सब डिवाइडेड। इसमें रिडक्शन ही नहीं हुआ है, सब डिवाइड हुआ है। ओल्ड इक्विटी डेबिट, न्यू इक्विटी क्रेडिट, दैट्स इट। न्यू आफ्टर द सब डिवीजन इक्विटी 10 रुपए का है, तो सरेंडर 50% ऑफ होल्डिंग यहां पर आएगा। द कैपिटल रिडक्शन देखिए आंसर, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बोलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सरेंडर एंड टू कैपिटल। फर्स्ट दो एंट्री में जो बोला उन्होंने मर्ज किया, उन्होंने उसे 10 लाख इक्विटी में 10 रुपए की इक्विटी में कन्वर्ट भी किया और बाकी के शेयर सरेंडर्स क्लियर किए। अब देखिए क्वेश्चन और आगे बढ़ता है। That one of the share surrender shares are converted into 10% preference share capital. रुक जाइए friends, over here conversion is there. It is like this. Surrender account debit 10. Why it is 10 lakh? I hope you know that. The 2 lakh preference share capital. But when I am getting converted it over here, that is another क्वेश्चन दैट प्रोवाइड्स फॉर सी 20,000 शेयर्स, उसे ही सिर्फ कन्वर्ट करना है, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करना है। आई विल सजेस्ट, इंस्टीट्यूट ने इस आंसर में काफी जर्नल एंट्रीज को मर्ज किया है। डोंट गो इन दैट सेंस, सिंपली इसे 1 बाय 1 आप कंसीडर करते जाइए। यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स में इसे कन्वर्ट करने पर 2 लाख प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट, सरेंडर डेबिट। आई होप यू गेट इट। नाउ रिड्यूस दी डिबेंचर होल्डर्स क्लेम बाय 50%। पहले तो ये साइड में कर लीजिए, डिबेंचर डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन कितना उनका क्लेम है। आप देख सकते हैं डिबेंचर्स वालों के लिए 6,90,000। चलिए एंट्री देखते हैं, ये रहा। मैंने 3 लाख और 45, सर ये कैसे आया? देखो बता रहा हूं, 6 लाख का 50% और 90,000 का 50%, क्योंकि मैंने उतना क्लेम दोनों का रिड्यूस किया, इंटरेस्ट और डिबेंचर का वैल्यू ये कंसीडर किया। उसके सामने उन्हें कुछ देना है, ऐसा लिखा गया है कि अब उन्हें इन कंसिडरेशन दे वांट द प्रेफरेंस शेयर ऑफ 2 लाख विच इज कन्वर्टेड आउट ऑफ सरेंडर। रुक जाइए फ्रेंड्स, मोस्ट रेलिवेंटली अब वो प्रेफरेंस शेयर हम किनको दे रहे हैं? इक्विटी में से इन यही प्रेफरेंस शेयर्स हमें तो मिले कैसे है? सर कन्वर्ट किया है, हम डिबेंचर वालों को दे रहे हैं। आई विल क्रेडिट इट हियर सेपरेटली 2 लाख। देन 78 इक्विटी, 1 minute guys, how it is 78? The trade payables reduced by 25 and the remaining trade payables given 10% equity, ₹10 equity. See, trade payables के लिए तो हमें पहले रिडक्शन, टोटल रिकंस्ट्रक्शन 1,04,000 इतना रिड्यूस हो जाएगा, 25% रिडक्शन है। आई होप यू गेट इट। एंड जो बचा उतना इक्विटी इधर आ गया 78,000 का। टोटल बेनिफिट कितना हुआ हमने रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर किया। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। द थिंग इज जितना भी अब बच गया है दैट इज सरेंडर का बैलेंस। सरेंडर का बैलेंस हमें सीधा हमें कंसीडर करना है कैपिटल रिडक्शन, रिकंस्ट्रक्शन बेनिफिट। सो दोस्तों यहां पर उस रिकंस्ट्रक्शन में से P&L का बैलेंस राइट ऑफ करेंगे, P&L अकाउंट क्रेडिट, कंस्ट्रक्शन डेबिट। आई होप यू गेट इट। यहां पर शेयर सरेंडर को
हमें कैंसिल करना है उसका अकाउंट। वैसे भी हमने लास्ट में 7,22,000 जो बैलेंस बच रहे थे उसे मैंने ट्रांसफर किया। रिकंस्ट्रक्शन में से पीएनएल और बाकी का बचा हुआ कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर होगा। आई होप यू गेट इट फ्रेंड्स। विद दैट नोट हियर वी आर डन with the question number 5 and now entering to the last question of the paper 6A. Let us see this. So friends, here in the question you are required to compute EPS. ठीक है, सो ये वैसे भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सो यहां पर हमें स्पेसिफिकली क्या अप्लाई करना है, यहां सिंपली कंप्यूट द बेसिक ईपीएस, दैट इज द कैलकुलेशन. So don't worry at all about any other thing else. What you need to focus is the two things. How you will calculate EPS, the net profit after tax reduced by the preference share dividend. See, EPS we will calculate from the perspective of equity holders. हम उनके लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो ढूंढना चाहते हैं, सो हम ये माइनस करेंगे. रिड्यूस बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. यस फ्रेंड्स, नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग. फ्रेंड्स, यहां इस क्वेश्चन में इसी का कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि कंपनी के पास पहले 6 लाख शेयर्स थे 10 रुपए के, लेकिन 5 पेड अप थे. अब हाफ ऑफ द ईयर में 1 सितंबर को रिमेनिंग 5 आ चुके थे. उसमें 1 शेयर होल्डर ऑफ 60,000 इक्विटी, उसने पेमेंट नहीं किया. गाइज, ओवर शेयर नेट प्रॉफिट इज ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड इज ओके. आपको सिर्फ जो ध्यान रखना है वो ये था कि पहले 6 लाख शेयर 5 रुपए के मुताबिक 5/10 5 महीने तक थे, और 1 सितंबर था, माय मिस्टेक. तो 5 महीने गए, 1 सितंबर को ध्यान से देखिए. 5,40,000 शेयर्स, 6 लाख जो थे उसमें से 5,40,000 लोगों ने वो शेयर्स 10 रुपया. आई होप यू आर गेटिंग, इट विल बिकम फुल्ली पेड अप. सो कंसिडरिंग दैट फॉर 7 months इट वॉज लाइक दिस, and those 60,000 shares remaining, that will be 5 for the remaining 7 months also. उन्होंने तो पेमेंट किया ही नहीं है 5 का. I hope you got it. Friends, with that note, here you will be able to get the weighted average number of shares. बाकी डेटा like 2196 कहां से है सर? Obviously given in the question, profit minus the preference shares dividend, that I can reduce, I can get it 4.80. A very very cash mark question. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन इज आस्किंग रिलेटेड टू सर्टेन इवेंट्स. सी द लास्ट लाइन एस रेफरेंस टू द AS4. द इवेंट्स आर वेदर एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग. वी नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई विल बी ट्रीटेड एट कंटिंजेंसीज और नॉट. सो यहां पर सबसे पहले विथ रेफरेंस टू AS4 आपको यह ध्यान रखना है, दोज इवेंट्स विच वर एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट and for which the additional evidences we understood we got after the balance sheet date. The events occurred after the balance sheet date but before the date when it is approved, the financial statements are approved and finalized by the competent authority. तो वो सभी एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन फायर हुआ फिनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, ये नॉन एडजस्टिंग है. चलिए शुरुआत करते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं. शूट फाइल हुआ 20 अप्रैल को, बोलो क्या एडजस्टिंग? सर जी नॉन एडजस्टिंग. देयर वॉज नो एविडेंस एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, देयर वॉज नो सिचुएशन एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट, हेंस इट इज नॉन एडजस्टिंग. दूसरा देखते हैं, प्लीज बी केयरफुल. क्या पूछा गया है? टर्म्स कंडीशन फॉर बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी हैज बीन डिसाइडेड बाय March 20. मार्च में हो चुका था डिसाइड, बट क्या हुआ? फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर अरेंज इन अप्रैल. गाइज एटलीस्ट ये एडजस्टिंग इवेंट है, बिकॉज यहां पर हमने टर्म्स एंड कंडीशन जब डिसाइड किया था तो देयर वर सर्टेन इफेक्ट्स, और रादर वी कैन से देयर वर कंडीशंस एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट कि हम परचेस करने वाले हैं उस एंटिटी का. तो यहां पर ये असेट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट नेसेसरी होगा. यस, हम टेक ओवर की एंट्रीज अभी ही पास ऑन करेंगे. सो विद दैट द नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, देयर वाज अ थेफ्ट ऑफ द कैश. अच्छा, चोरी हो गया. क्या कोई ऐसा बोल सकता है कि चोरी की कंडीशन पहले से पता ही थी? भविष्यवाणी नहीं हो सकती. वेरी इजी थिंग इट इज. ये लॉस जो है, आई होप दिस विल बी नॉन एडजस्टिंग बिकॉज दैट occurred between the balance sheet date and after the date of finalization approval, but the theft was detected on 16 July. Friends, problem यही है, there was no any condition that shows that will be the theft of the cash, so this is non adjusting. Next one we talk about the last, rather
कंपनी स्टार्टेड नेगोशिएशन विद द पार्टी टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी। 40 लाख में प्रॉपर्टी बेचने वाले थे, मार्च में बात हो चुकी थी, लेकिन बुक वैल्यू 30 लाख की है। क्या अब हमें 10 लाख का प्रॉफिट कंसीडर करना है या नहीं? सेल डीड बाद में बना हुआ है एंड हियर बाय certain things will be non-adjusting. Until and unless the sale deed was not entered, I cannot say this will be the adjusting event. Transaction fulfill ही नहीं हुआ है, सिर्फ negotiation था. So the sale of immovable property will be on balance sheet date, not finalized on that date. Over here on the date 15th April, it is after the balance sheet date. Don't consider. I hope you get it. And the last we talk about the major fire. Friends, obviously these fires are considered to be the non-adjusting event. However, हमने एक assumption इधर लेना है. Only the disclosure is required. यहां इंश्योरेंस भी था, बहुत बड़ा लॉस नहीं है, पर मान लीजिए लॉस बहुत बड़ा होता and this would have been such a major event that can affect the going concern of the entity, then this also would be considered adjusting. फ्रेंड्स मैं फिर से कह रहा हूं, जनरली फायर हुआ है नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन अगर उस फायर का लॉस जो है वो मेजर लॉस है एंड इट कैन अफेक्ट द गोइंग कंसर्न ऑफ द बिजनेस, इट विल बी कंसिडर्ड एज एडजस्टिंग. आई होप यू गॉट इट. फ्रेंड्स, विद दैट नोट, हियर वी आर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द ऑप्शनल क्वेश्चन you have been asked to give the treatment as per AS 19. For AS 19 we consider para number 45 and rather it will be 50. I can say para 50 it is there. In this para number already been indicated, when there is a sale and lease back transaction and the lease you are taking back is operating lease, तो अगर कोई भी प्रॉफिट फेयर वैल्यू वर्सेस द बुक वैल्यू तक का जितना प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में उसे जाने देंगे, लेकिन अगर द प्रॉफिट विच इज मोर देन इट्स फेयर वैल्यूएशन दैट विल बी डेफर्ड. लेट्स सी इसमें क्या क्या एंट्रीज है. हम देख सकते हैं यहां पर सेल प्राइस 500 था, वो फेयर वैल्यू के इक्वल था, तो पूरा प्रॉफिट पीएनएल में गया. लेकिन जब फेयर वैल्यू 450 था, सेल प्राइस 380 था, तो लॉस हुआ. अब ध्यान से समझिए, फेयर वैल्यू हमारे बुक वैल्यू को रिप्लेस करेगा. देख सकते हैं कि फेयर वैल्यू 50 का लॉस हो रहा है, वो लॉस पीएनएल में, एंड ऑल्सो 380 450 टोटल 70 का लॉस है गाइस, टोटल 70 का लॉस. बट आई नीड टू बी केयरफुल. सी, ये जितना लॉस सिर्फ हमारे एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू से होगा वो मैं पीएनएल में लेकर जाऊंगा. हाउएवर इमीडिएटली कैन बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन फ्यूचर लीज पेमेंट. समझ सकते हैं कि अगर बुक वैल्यू से कम में अगर लीज बैक हुआ है तो वो जो लॉस है अगर लीज पेमेंट के द्वारा उसे रिकवर भी कर लिया जाएगा तो उसे हमें डेफर्ड करना है. बट यहां पर आई कैन कंसीडर. फ्रेंड्स, फेयर वैल्यू 450 है. पहले तो बता दे रहा हूं कि वो जो प्रॉफिट है, सी बुक वैल्यू 400, फेयर वैल्यू 450, बुक हमको प्रॉफिट बुक करना है या नहीं, सी वो रिवैल्यूएशन होगा, यहां उसे कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ सेल एंड लीज के पार्ट को देखो. नेक्स्ट, फेयर वैल्यू 400 था, सेल प्राइस 5 लाख था, 500 था. ऑब्वियसली ये फेयर वैल्यू से ऊपर का जितना भी प्रॉफिट हो रहा है that is to be deferred over the period of the lease term. Next we talk about fair value 460 500. अब आप समझिए कि हमारा बुक वैल्यू का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो तो बुक वैल्यू तो 400 था, तो फेयर वैल्यू तक ले जाओ, पहले प्रॉफिट है, पर बाद में देखो उससे भी ऊपर है और प्रॉफिट हो रहा है, तो कैन आई से बुक वैल्यू में प्रॉफिट है और बाकी का 40 का लॉस बन जाएगा. और वो लॉस हम सी, आप समझ सकते हैं कि बैलेंस प्रॉफिट, सॉरी माय मिस्टेक, बैलेंस प्रॉफिट जो फेयर वैल्यू से ऊपर जा रहा है ऑब्वियसली विल बी कंसीडर्ड एज द डेफर्ड प्रॉफिट टू बी टेकन. जब लॉस की बात है, फेयर वैल्यू तक बुक वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते. विद दैट नोट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी इज वेरी मच रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन. In previous MTPs already I have calculated it so many times, so I don't want to discuss longer about this.
आपको पता है कि इसमें लिक्विडेटर्स का एक्सपेंस और पूछा गया कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर। लिक्विडेटर को उसका एक पहले तो जो भी असेट रियलाइज हुई उसका 2% मिल रहा है, क्रेडिटर्स का पेमेंट मिल रहा है। लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जब लास्ट में 13,47,750 मिलना है, उसके अंदर लिक्विडेटर 3% इंक्लूसिव रेम्यूनरेशन हासिल करेगा। सो आप देख सकते हैं दिस इज 39255। दैट इज इजी एज आई हैव कंसीडर्ड एंटायर लाइंस ऑफ द क्वेश्चन। सिंपल मैथमेटिक्स है, बी केयरफुल अबाउट दैट। सबसे पहले असेट रियलाइज, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पहले पेमेंट जाएगा, लास्ट में भाई साहब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप सो यू आर गेटिंग द वर्ड्स नाइसली। ये पहले दोनों जो रेम्यूनरेशन है 50 और 2250, ये दोनों माइनस भी होंगे, क्योंकि जो बैलेंस बच रहा है अनसिक्योर्ड को, उसी के अंदर हमें इसे रेम्यूनरेशन भी प्रोवाइड करना था। फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड विद दैट द लास्ट क्वेश्चन फॉर द पेपर टुडे, हियर वी गाइज आर कंसिडरिंग द क्वेश्चन अबाउट सुविधि लिमिटेड। They are offering 50 stock option to 1500 employees on the 1st April 19। फ्रेंड्स, आपको जहां पर रुकना है वो बात है लास्ट लाइन। 31 मार्च 20 को 1200 एम्प्लॉई ने 30 रुपए ऑफर परचेस कर लिया, 30 रुपए में स्टॉक खरीद लिया, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपया है, तो इसकी एंट्री दीजिए। दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं कि वेस्टिंग पीरियड सिंपली 1 साल का है। आपको डेफर्ड अकाउंटिंग करनी नहीं है, मतलब डेफर्ड का मतलब आपको अलग अलग ईयर में एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस का एंट्री नहीं करना है। माय आंसर इज गोइंग टू बी 1200 एम्प्लॉइज। फॉर 1200 एम्प्लॉइज इनटू 30, द बैंक अकाउंट आई विल मेक अ डेबिट। देन द टोटल मार्केट प्राइस इज 50, so 1200 into 20, what is known as employee compensation expense. I hope you get it. This expense will be debit. To credit what? Here we can credit the equity share capital. I hope you get it. दोस्तों, हम इसे क्रेडिट करेंगे एंड हम एक और चीज क्रेडिट करेंगे, which is the share premium, securities premium. This will be 10 and this will be 40. एंड एट लास्ट एक चीज कभी ना भूलिए, ये जो एक्सपेंस है उसे पीएनएल में डेबिट करना है। बस ये 2 एंट्री के आपको टोटल 5 मार्क मिल रहे हैं। विद द गुड नरेशन यू शुड ऑलवेज पुट अप द बेटर प्रेजेंटेशन टू गेट दैट एंटायर 5 मार्क्स। सो विद दैट नोट, हियर बाय I'm completing with this paper. Thank you to stay tuned with us, and yes, we are coming ahead with more and more papers and all the practice papers related to the institutes MTP and RTP. This is the institute that will provide you a one-stage platform for all your professional studies. Stay connected with Navkar Digital Institute. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.